नवोदय 24/7 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का 22 अप्रैल 2021 को जारी सर्कुलर ऑल हेड्स ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स। सीबीएसई एफिलिएटेड जितने स्कूल्स हैं उनके लिए ये सर्कुलर सीबीएसई ने इशू किया है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड फॉर सेशन 2021-22 2021-22 इस शिक्षा सत्र के लिए जो अभी शुरू हुआ है उसके लिए ये असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस से संबंध रखता है। इन ऑर्डर टू मूव टुवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन CBE, द बोर्ड वाइड सर्कुलर नंबर एकेडमिक 5/2019 dated 18th January 2019 had asked schools to adopt NCERT learning outcomes, made corresponding changes in the examination and assessment practices for the year 2019-20. Wide circular number academic 11/2019 dated 6 March 2019 and the year 2020-21 wide circular number academic 18 of 2020 dated 16th March 2020 and supported schools and teachers through online capacity building programs under this specific theme for the year 2020। तो ये circular है। The National Education Policy 2020 has affirmed the need to move from rote to competency based learning, making it more focused on developing the creative and critical thinking capacities of students to meet the challenges of the 21st century proactively. It emphasizes that learners must be equipped with the ability to solve problems, and assessment must shift from testing primarily rote memorization skills to one that is more formative, is more competency based, promotes learning and development for our students, and tests higher order skills such as analysis, critical thinking and conceptual clarity। तो जो आज तक की शिक्षा प्रणाली में रट्टा लगाने की प्रथा थी उसको हटाकर अब हाई ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था बोर्ड कर रहा है। इसके लिए augmenting the thrust towards CBE, the board is initiating further corresponding changes in the examination and assessment practices for the year 2021-22. While the overall marks and duration of examination shall remain same, change in the composition of assessment tasks would help us achieve the desired ends. Therefore, in the forthcoming sessions, a greater number of competency based questions or questions that assess application of concepts in real life unfamiliar situations will be part of the question paper। तो सीबीएसई ये साफ कर रही है कि जो ऐसे स्किल्स है जो रियल लाइफ सिचुएशंस में भी आए वो एग्जामिनेशन का पार्ट होगा, क्वेश्चन पेपर का पार्ट होगा। द चेंजेस फॉर क्लासेस 9th to 12th ऑफ 2021-22 इंटरनल ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन आर एज अंडर। जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसकी ये बात हो रही है सेशन 2021-22 के लिए 9th क्लास से 12th क्लास तक। क्लासेस 9th और 10th के लिए देखिए ईयर एंड एग्जामिनेशन ओब्लिक बोर्ड एग्जामिनेशन थ्योरी कंपोजिशन। एग्जिस्टिंग जो 2020-21 में था वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 20% और केस बेस्ड सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस 20%, साथ में शॉर्ट आंसर ओब्लिक लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रिमेनिंग 60%। ये कंपोजिशन थी वर्तमान में 2020-21 सेशन में। अब जो इसको मॉडिफाई किया गया है
2021-22 के लिए वो है competency based questions would be minimum 30%. These can be in the form of multiple choice questions, case based questions, source based integrated questions और any other types जो बोर्ड फिक्स करे. और questions, objective questions will be 20%, remaining 50% short answers oblique long answer questions as per existing जो नॉर्म है. एग्जिस्टिंग पैटर्न, तो एक बार फिर इसको देख लें. competency based questions 30%. These can be in the form of multiple choice questions, case based questions, source based integrated questions और any other form. और उसके साथ objective questions 20%, remaining 50% short answer long answer questions as per existing pattern. existing pattern जो ये वाला था. अब देखिए क्लास 11th और 12th के लिए ईयर एंड एग्जामिनेशन ओब्लिक बोर्ड एग्जामिनेशन थ्योरी. इसकी कंपोजिशन जो एग्जिस्टिंग थी 2020-21 के लिए वो थी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 20%, केस बेस्ड सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस 10% और शॉर्ट आंसर ओब्लिक लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रिमेनिंग 70%. 70% यानी 20% आपको आता था ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड 10% और 70% शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर. जो मॉडिफाई किया गया है 2021-22 के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 20%. These can be in the form of multiple choice questions, case based questions, source based integrated questions और any other types. साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी 20%, रिमेनिंग 60% शॉर्ट आंसर ओब्लिक लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एज पर एग्जिस्टिंग पैटर्न. तो अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस है 20%, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20% और रिमेनिंग 60% शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स. Curriculum document released by the board wide circular number academic 26 of 2021 dated 31st March 2021 for the academic session 2021-22 and the sample question papers may also be referred to for details of changes in the QP design of individual subjects. तो इसके साथ ही CBSE ने जो करिकुलम डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है उसके लिए भी कहा गया है कि आप उसका संदर्भ लें, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आप इसके लिए देख सकते हैं. तो ये जानकारी थी 9th क्लास से 12th क्लास के लिए नए शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए. तो जो ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, इसको आप नोट कर लें 9th से 12th क्लास के सभी विद्यार्थी और टीचर्स. वीडियो को सभी संबंधित छात्रों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए देखते रहें नवोदय 24/7.